Hello everyone. In this part we will start a new chapter, that is from chemistry part, chapter 5, coal and petroleum. Clear? So before going to the chapter, let's come to the heading, coal and petroleum. I hope all of you know what coal and petroleum are, right? So in daily life हम कोल का क्या क्या यूज करते हैं वो सबको पता होगा, है ना। कोल को क्या यूज करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री में यूज होता है। सबसे पहले किस में यूज होता था वो कोल, ट्रेन में यूज होता था, है ना। एंड नाउ इट इज मोस्टली इन कुकिंग पर्पज, इन इंडस्ट्री, राइट। एंड पेट्रोलियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन vehicles, right. So petroleum is not the petrol, okay, it is a combination of many other fuel also, like from the petroleum we can get petrol, diesel, kerosene, wax. All these things we will discuss in this chapter. So before coming to the chapter, before coming to the topic, let's have a look on resource. Clear? What resource? What do you mean by resource? Resource means anything that we need and use and have some beneficial beneficial use for us is known as resource. Means हर एक चीज जिसे हम यूज करते हैं, जो हमें ज़रूरी है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक। सो एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड वी नीड इट, वी यूज इट एंड इट हैज सम बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर अस, इट्स सेड टू बी a resource. Then this resource may be of many types. Listen everyone, a resource may be of many types based on different basis, okay, or according to different basis the resources can be classified into various categories. And what are they? First of all, the resource is divided into biotic and abiotic. Clear? Biotic and abiotic. Biotic resources are those which include लाइफ, ओके। मीन्स एक रिसोर्स, हर एक चीज जिसमें लाइफ है, जो जिंदा हो सकता है, दैट इज नोन एज बायोटिक रिसोर्स. एंड एबायोटिक डू नॉट हैव लाइफ, ओके। तो हर एक रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं होता इज नोन एज एबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक में क्या आएगा? ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्लियर एवरीवन? बायोटिक में आएगा एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंगी, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, वायरस, ऑल दिस थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्स. अबायोटिक may be your soil, air, water, all these things are what? Abiotic resource. Clear these two? So अगर क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, इजीली लिख सकते हो सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लाइफ द रिसोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एबायोटिक. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सोर्स और बेस्ड ऑन
the origin from where they do come. Resources are of two types. What are they? They are natural and artificial resource. Okay everyone, natural and artificial. So what is natural? Natural means the resource that we get from the nature. ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरली ऑटोमेटिक मिलता है, जिसे हम बना नहीं सकते. जैसे कि कौन कौन सी चीज़? सॉयल, आवर एनवायरनमेंट, जितने एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हैं, लाइक सॉयल, एयर, वाटर, ठीक. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम थोड़ी ना बना सकते हैं. कैन वी? नो. सो दीज आर natural resources. So the resources that are obtained from the nature and are beneficial to us are known as natural resource. Artificial are also known as man-made resource. What? Man-made resource. Man-made like सब अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, क्या? एक पेन, ठीक है. अभी क्या? क्लॉथेस, और सपोज यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक, polythene. All these things are artificial resource, means the resources that are made by the human beings are known as artificial resource. So here is another two type of resource, natural and artificial. Now what natural resource is, or is there any other types of or any division of natural resource? Yes, there is. So now I would like to say natural resource are again of two types. Clear to all? Natural resources are of two types. What are they? Natural resources are, one is renewable natural resource and non-renewable natural resource. Okay, renewable means the natural resource that can be used again and again or that cannot be replenished is known as renewable. देखो, न्यूएबल मतलब नया बना सकते हैं, रिन्यूएबल मतलब फिर से हो सकता है. जैसे कि विंड एनर्जी है ना, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. देन सनलाइट. ये सब क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. मीन्स ये यूज करो कभी खत्म नहीं होगा. बट नॉन रिन्यूएबल आर हमारा कोल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल है ना, केरोसिन ऑयल. ऑल दीज थिंग्स आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल आर also known as non-exhaustible. What they are known as? Non-exhaustible. ठीक, नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होता. नॉन रिन्यूएबल आर नोन एज एग्जॉस्टिबल. ठीक. सो रिन्यूएबल natural resources are also known as non-exhaustible and non-renewable are known as exhaustible natural resource. So देखो बच्चों, याद रखो, नेचुरल रिसोर्स अगेन दो टाइप से होते हैं. एक होता है रिन्यूएबल, ओके,
और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में जिसको हम यूज करते जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसको एक बार यूज करो ख़त्म हो जाता है, ठीक। देन रिन्यूएबल आर ऑल्सो नोन एज नॉन एग्जॉस्टेबल, व्हेयर एज नॉन रिन्यूएबल आर नोन एज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। उनका एग्जाम्पल समझ में आ गया। देन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ओके। तो वो कौन कौन है? नॉन रिन्यूएबल में आएंगे हमारे दो नेचुरल रिसोर्स जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो दोनों कौन है? कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर? सो इस पार्ट में हम डिस्कस किए किस चीज़ के बारे में? रिसोर्सेस के बारे में। रिसोर्सेस कितने बहुत टाइप्स के हैं पहले डिस्कस किए, बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स। देन आ गया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स। देन नेचुरल में दो टाइप आया, एक आया रिन्यूएबल और एक आया नॉन रिन्यूएबल। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया ये? सो इस चैप्टर को, ये पार्ट को अच्छे से ध्यान दो।